5, 6. Mole fraction. Okay, please write these things with me. Mole fraction, it is represented by psi. ठीक है, it is represented by psi. क्या होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए. Please write this with me. ठीक है. The ratio of moles of a component to the sum of number of moles of all components is called mole fraction. ठीक है, it's called mole fraction. I hope you are writing it. Next है, if I want to calculate, अच्छा this mole fraction of B मतलब solute के लिए जनरली निकाला जाता है, ऐसे कर लीजिए इसको आप. Only write chi, okay? Because B is only for solute. We can also calculate the mole fraction of solvent. ठीक है, we will see how. So the mole fraction of solute can be written as number of moles of solute divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute. Mole fraction of solvent can be written as number of moles of solvent divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute. ठीक है. This is only for binary solution in which we are having one solute and one solvent. If I have many, then mole fraction of I component, it is equal to number of moles of I component divided by number of moles of first component, number of moles of second component, number of moles of third component plus 4 component and so on. ठीक है. Please copy this down. Let me know once you're done. By the way, is my voice clear or is it still cracking and it is breaking in between? Mariam, Batul and Zeba. Clear, sir. Clear है? ठीक. Yes, sir. Zeba, let me know once you're done writing. Done, sir. Done. अस्सलाम वालेकुम खदीजा, am I audible? खदीजा, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही खदीजा को आवाज. ठीक है, मरियम and Zeba, you will answer me. If I want the sum of mole fraction of A plus mole fraction of B, ठीक है, mole fraction of A plus mole fraction of B, I can write this as number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B. Then what can happen? Since the denominators are same, I can write number of moles of A, or rather I should write it like, first of all denominator को ले लेते हैं. The denominators are same. Number of moles of A plus number of moles of B. यहाँ पे क्या जाएगा, ऊपर भी number of moles of A plus number of moles of B. Now both of these things can get cancelled and we will then get chi A plus chi B is equal to 1. ठीक है, बताइए. Make sense, yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir.
Copy this down. Anyone still writing? Anyone still writing? Now एक और लिख लीजिए, लास्ट आपका 7th नंबर, मोलारिटी. Molarity is denoted by capital M. Here also you need to remember the sentence, है ना, जो definition है उसकी वो याद रख लीजिएगा. What is molarity? Number of moles of solute per liter of solution. Per liter of solution. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल M, that is molarity, it is equal to moles of solute डिवाइड बाई, इफ यू रिमेंबर, लीटर क्या होता है? मास होता है, डिस्टेंस होता है, वॉल्यूम होता है. क्या होता है? वॉल्यूम होता है. ठीक है ना? Volume. So we can write volume of solution in liters. ठीक है, volume of solution in liters. We can rewrite this as simply number of moles of solute can be written as NB divided by volume of solution in liters. If I talk about the unit of this, then the unit will be moles per liter. ठीक है, or you can write this as capital M, or it can be also shown as molar. ठीक है, there is something like 2 molar, 3 molar, that means 2 moles per liter, 3 moles per liter, and so on. अच्छा, you can also have words like semi-molar. Semi-molar मतलब होता है half moles in 1 liter. Centimolar, centi मतलब होता है 1/100. Molar is same thing, moles of solute per liter. Millimolar, so milli का मतलब होता है 10⁻³ molar means moles of solute per liter of solution in 1 liter of solution. ठीक है, those things could also be there. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Sir, what you said for millimolar? Milli means 10 to the power minus, milli का मतलब 10 to the power -3. मोलर का मतलब moles of solute in 1 liter. So 10 to the power -3. अच्छा, लिख देते हैं. Example, if you have semi-molar, half, semi का मतलब half, molar का मतलब moles of solute in 1 liter. ठीक है, ये ट्रांसलेशन हो गया इसका. उसी तरह से आपके पास हो सकता है डेसीमोलर. डेसीमोलर का मतलब क्या होता है? 1/10 moles of solute in 1 liter. ये सेम चीज है. इसका क्या हो सकता है? सेंटीमोलर. सेंटीमोलर क्या होगा? 1/100 moles of solute in 1 liter. सही है. अगर कोई ऐसे बोले 2 मोलर, सर क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है सेमीमोलर डेसिमोलर. हाँ, दे कैन यूज दिस वर्ड डेसीमोलर, दे कैन यूज दिस वर्ड सेंटीमोलर. ये पूछेंगे नहीं आपसे व्हाट इज सेंटीमोलर, ये नहीं कभी पूछे. वो ऐसे सेंटेंस में, मतलब वो क्वेश्चन में दे देंगे अ सेंटीमोलर सॉल्यूशन इतना ml का, इस तरह से. ठीक है, 2 मोलर मींस 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन. जैसे मोलर है उसी तरह से मोलल भी हो सकता है. तो मोलल का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना, जो हम लोगों ने मोलालिटी पढ़ी है. तो उस तरह से मोलल को यूज किया जा सकता है. डन एवरीवन? यस नो? प्लीज टेल मी. इज एवरीवन डन? यस सर. Anyone still writing? No one is writing. ठीक है, सॉल्व देखिए.
30 gram of NaOH is mixed with water to make a solution of 2 liters. Calculate the molarity of solution. ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, व्हाट इज 30 ग्राम? 30 ग्राम क्या है? यू हैव टू असाइन सम वैल्यूज, है ना, मतलब ये 30 ग्राम क्या बोलेंगे इसको? इट इज द मास ऑफ क्या, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? मास है। solute. गाइस आंसर ना, थोड़ा चीजें आंसर करते हैं। हाँ ठीक है, Mass मास ऑफ of सॉल्यूट, solute. तो आई कैन राइट दिस एज डब्ल्यू बी। हाँ, डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ? 30 ग्राम्स। ठीक है, इज मिक्स्ड विद वाटर टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ 2 लीटर। 2 लीटर क्या है? डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, मास है, वॉल्यूम है, क्या है? Volume. वॉल्यूम ऑफ व्हाट? Solution. इसका वॉल्यूम। वेरी गुड, ये देखिए ये सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट है ना। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना हो गया? 2 लीटर। सो एंड दे हैव आस्क्ड अस मोलैरिटी। ठीक है, एंड व्हाट इज मोलैरिटी? कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, नाउ वी हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम तो है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, हाँ या ना बताएं? इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन इन द क्वेश्चन, यस और नो? क्या नंबर? अरे भाई सवाल में देखो ना, लिख तो दिया हमने सारी चीजें, हाँ या ना जल्दी बताएं। डोंट राइट एनीथिंग, टेल मी, इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन इन द क्वेश्चन, यस और नो? No, इज द sir. मोल्स ऑफ, नो इट्स नॉट गिवन ना भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है फिर? क्या दिया हुआ है सॉल्यूट के बारे में? व्हाट इज गिवन अबाउट द सॉल्यूट? आंसर मी गाइस, माइक ऑन रखे ना प्लीज, व्हाई इज द माइक ऑफ? प्लीज कीप योर माइक ऑन। व्हाट इज गिवन? सॉल्यूट के बारे में क्या दिया? सॉल्यूट के बारे में 30 gram. मास दिया है, तो क्या मास से मोल्स निकल सकता है? कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम मास? बोलो भाई, if mass is given, can you calculate the number of moles, yes or no? Yes. हाँ, क्या फॉर्मूला लगेगा? देखिए Given mass by स्पेसिफिकली, molar mass. हाँ, जब भी आपको मास दिया रहे ना, तुरंत नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया कीजिए, ठीक है ना। जब मास दिया नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना ही, 30 डिवाइड बाई मोलर मास NaOH का होता है 40। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में ही रखना है, 3/4। ठीक है, डोंट सॉल्व फॉर दी फ्रैक्शन बस। अब आपको क्या निकालना? मोलैरिटी। मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपके पास? 3/4 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर्स कितना है? 2 है, दिस विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, क्या हो गया? 3/8 मोल्स पर लीटर। बस हो गया, और क्या। All of you understood this? Yes or no? Please tell me. क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. जल्दी कीजिए। Yes, sir. Anyone still writing? Anyone still writing? Yes, sir. 1 minute. आराम से। Done, sir. Anyone still writing?
कोई नहीं लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है ना, ठीक है। यू हैव बीन गिवन 50 ml, क्या है भाई 50 ml, 50 ml ऑफ aqueous solution ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास दिया, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि दे हैव गिवन यू व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से निकल जाएगा, बताइए हाँ या ना। कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा चलो सवाल लिखो, करो भाई करो, ये पूछ रहे हैं हम कुछ किए। 'Send your answer in the Zoom chat, A B C D में से कोई भी होगा भेजिएगा। By the way, this question was asked in 2020 paper. फिफ्टी एम एल है, उसको लीटर मोल्स नहीं होगा जेबा, देखिए यूनिट सही लिखिए जेबा। ए बी सी डी आप बताइए ना, ए बी सी डी बताइए आप लोग। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, मोल्स पर लीटर होगा, यूनिट है ना, मोल्स पर लीटर। वेटिंग फॉर मरियम बतूल एंड खदीजा। ओके मरियम बतूल, वेरी गुड। खदीजा तो पता नहीं है या नहीं है, खदीजा कुछ बोलेंगी तब जाके वी विल कंसीडर दैट शी इज हियर, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे हाउ टू डू दिस सोल्यूशन। गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इट इज 50 ml। 50 ml का मतलब 50, मिली का मतलब 10⁻³ लीटर्स का मतलब लीटर्स, ठीक है। ग्लूकोज कंटेन्स इतना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है 6.02 इंटू 10⁻²⁰, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा। ओके फाइन मरियम बतूल, नो प्रॉब्लम, रीजॉइन। 6.02 इंटू 10⁻²² डिवाइड बाई 6.02 into 10 to the power 23. So these two will cancel each other out. I will get the number of moles is equal to 10 to the power minus 1. Molarity, it is equal to number of moles कितना 10 to the power minus 1 divided by volume कितना 50 into 10 to the power minus 3. Basically molarity क्या 1/5 into 10 की power minus 1 plus 3, है ना, 5 नहीं 50 होगा, माई बैड, 10 minus 1 plus 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2/50 इज इक्वल टू 100/50, ये हो गया आपके पास 2 मोलर, ठीक है। सो दैट इज द मोलारिटी।
मरियम बतूल, आर यू देयर? यस और नो कुछ बोलेंगे आप? फिर हम अगला सवाल कराएं। यार मरियम बतूल पता नहीं है या नहीं। देखिए ये सवाल पढ़िए, Sir, बताइए can होगा you या नहीं hear होगा। me? या आई कैन हियर यू नाउ। प्लीज रीड दिस, राइट दिस क्वेश्चन एंड टेल मी शुड आई डू दिस क्वेश्चन या फिर आप लोग कर लेंगे। नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, ठीक है ना। इफ यू गेट स्टक प्लीज लेट मी नो।
गाइस लेट मी नो इफ यू आर स्टक। बोलिएगा प्लीज भाई, खदीजा, मरियम बतूल एंड ज़ेबा। हो रहा है? चलिए काम करते हैं। आई विल गिव यू 1 more minute। ठीक है, सेंड मी वॉट एवर यू हैव डन। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। यू विल सेंड मी ऑन व्हाट्सएप वॉट एवर यू हैव डन। भाई किसी ने भेजा नहीं अभी तक। क्या पढ़ना नहीं है क्या आप लोग को? क्या नहीं पढ़ना है क्या? मरियम बतूल, ज़ेबा, खदीजा, एम आई ऑडिबल गाइस? बस चलिए, मरियम बतूल का आया। ज़ेबा, ए यार बस बेकार है। इतना हम परेशान नहीं होंगे आप Yes, लोग के पीछे। हमने sir. बोला जब भेजने, रिप्लाई कीजिए कम से कम। Um, बोलिए या तो हमसे दो sir, मिनट में भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं। जी बताइए। sir, I'm हाँ doing. बताएं। I'm sending you 1 minute. नहीं 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 नहीं, यू सेंड मी वट एवर यू हैव डन ना भाई। यू सेंड मी वट एवर यू हैव Okay, डन। ये तो हम कह रहे हैं okay, आप लोग से। जी थैंक यू वेरी okay. मच। Molarities, number of moles by volume, 9.8 gram of solute in 100 gram of solution. In 100 gram of solution, Mariam Batul, 9.8 gram of solute in 100 gram of solution। ठीक है? बट यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन ऑफ H2SO4। तो सोल्यूशन है ना, लेकिन आप पूरा लिखिए फिर, सोल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है तो सोल्यूशन ना। ठीक है मरियम बतूल, जी सर। चलिए आगे देखते हैं। डेंसिटी है, फिर उसके बाद आपने ये नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी 1.0 टू 9.8। 9.8 नहीं होगा, देखिए यही गलतियां हैं। ठीक है चलिए, देखिए ज़ेबा भेज रहे हैं आप? जी सर, 1 मिनट, चलिए फोन भेजिए। ऑफ है। फोन ऑफ है? अच्छा चलिए छोड़िए, तब फोन ऑन है। हाँ मैं भेज रही हूँ। ठीक है It's on भेजिएगा बाद। 2%. Okay, ठीक है छोड़ दीजिए फिर आप। छोड़ दीजिए, यहाँ okay, देखिए, छोड़ दीजिए। देखिए हम तो कहते हैं, देखिए ये सारी चीज़ ना बता दिया कीजिए, सर मेरा फोन ऑफ है, हम नहीं भेज पाएंगे। ठीक है ज़ेबा, okay sir. है ना? मतलब इंतजार करना, टाइम जाया हो जाता है ना। तो जैसा भी हो, जैसे मान लीजिए सर मेरे पास फोन नहीं है, अब बता दीजिएगा तो हम इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है ना ज़ेबा? ठीक Okay है sir. चलिए देखिए। सबसे पहले बताइए, यहाँ पे जब 9.8% W/W लिखा है, क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस? 9.8 ग्राम ऑफ solute in 100 ग्राम ऑफ solution। हाँ, 9.8 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूट क्या है यहाँ solute। पे? H2SO। हाँ H2SO4 है सॉल्यूट, है ना? जी सर। यस Yes और sir. नो? ठीक है, इन Yes sir. 100 ग्राम ऑफ 100 grams सॉल्यूट। solution. सॉल्यूट, ठीक है ना? हमेशा यही लिखना है आप लोग, इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इतना ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मिल जाएगा। यस और नो प्लीज टेल मी, बोलिए। यस। है ना? 9.8 ग्राम, Yes sir. 9.8 अपॉन 98 गिवन मास बाई मोलर मास। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन से आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। सो डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इट इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सही है, मास बाई डेंसिटी। व्हाट इज द मास? मास, मास किसका? लेकिन सोल्यूशन का तो 100 है ग्राम। ठीक है ना? मास किसका? H2SO4 का नहीं, सोल्यूशन का मास। मेक सेंस? यस और नो यस मरियम बतूल, ये सर। बताइए आप। यस ठीक सर। है, 100 अपॉन सेकेंड डिवाइड बाई डेंसिटी क्या है इसकी? 1.02। but please understand this will be in grams, this will be in grams per ml. Grams and grams will cancel out, so the volume that we are getting right now, it is in what? It is in ml। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 अपॉन 1.02 मिलीलीटर है। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁻, दिया हमने 1.02।
not the volume of the solution in liters, not the number of moles, ये हो जाएगा 1/10, है ना, 1/10. We will keep things in fraction until and unless the last step. आखिरी step में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे decimal. Molarity will be equal to number of moles is 1/10 divided by volume of solution क्या है. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 -1/1.02, ऐसे ही होगा ना, देखिए तो जरा, सही है, सही है, देखिए सिंप्लीफिकेशन देखिए, जल्दी बताइए, सही है. Yes. Yes, sir. सही है ना, ठीक है. Yes, sir. तो बेसिकली ये हो जाएगा 1/110.2, करेक्ट. इसको सॉल्व कर पाएंगे आप लोग? सही है, इसको सॉल्व कर पाएंगे? ये कर पाएंगे क्या? देखिए 10.02 ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया? मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 10 से. हाँ, 1/10 इंटू 10.2, देखिए जरा, बेसिकली तो ऐसा है ना. ठीक है, अच्छा, बताते हैं आपको. इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/10 डिवाइड बाई 1/10.2. क्या लिख सकते हैं इसको, 1/10 इंटू 10.2/1, ये क्या आ जाएगा, 10.2/10. देखिए जरा, ठीक है, हाँ या ना? क्या आंसर आ जाएगा फिर इसका? मोलारिटी इज इक्वल टू 1.02 मोलर. जेबा, यू गॉट दिस? yes or no, please tell me, जेबा. Yes, sir. चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए. लेट मी नो वंस यू डन, ओके. Okay, sir. Done, sir. डन. खदीजा आप हैं या क्लास में नहीं है भाई? खदीजा तो भाई चुपचाप बैठी हुई है बस, लगता है. चलिए लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. तो इसमें एक और इन्फॉर्मेशन लिख लीजिएगा, मोलर मास ऑफ के आई.
166 grams per mole. ग्राम्स, हाँ 166 ले लिख लीजिए, यूनिट छोड़ दीजिए अभी। That's my voice, Kanan. हाँ अभी हम थोड़ा सा शांत बैठे हैं, बच्चों को हमने सवाल दिया है। मरियम, am I audible? Yes, sir, I can hear you. ठीक है, लिखो लिखो। क्या ख्याल है जेबा, हो जाएगा ये वाला? जेबा, Yes, sir. I don't know. नहीं धीरे धीरे देखिए, इस सेम ऐसी सवाल तो हमने पहले वाला कराया ना, उससे मास परसेंटेज दिया हुआ था और आपको क्या निकालना था, मोलारिटी निकालना था, और लास्ट क्लास का देखिएगा तो मोलारिटी निकलवाया हमने। ठीक है ना, एक और चीज सुनिएगा जेबा, फोन ऑन हो गया आपका, फोन चार्ज पे लगा दिया आपने? जी लगाया। लगा दिया, ऑन हुआ फोन? हाँ। ठीक है, अब हम जब बोलेंगे आपको आंसर भेजने तो आंसर भेज दीजिएगा, ठीक है ना? ओके सर। आंसर नहीं, मतलब जितना किया उतना भेज दीजिएगा, ठीक है? बाद में आप करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है जेबा? ओके सर। ठीक है, तो ठीक है, वैसे ही करना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जो 20% मास बाई मास लिखा हुआ है ना, तो उसको ट्रांसलेट कीजिए। फिर 20 ग्राम से आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। फिर उधर आपके पास मिलेगा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन को, मास ऑफ सोल्यूशन से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालिए। मास ऑफ सॉल्वेंट से फिर आप क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में हम्म। कन्वर्ट कीजिए, मोलारिटी अपॉन वॉल्यूम इन केजी आ जाएगा, मोलारिटी निकल जाएगा। ठीक है ना, कीजिए, ट्राई कीजिए, होगा। अच्छा। ओके ओके सर।
चलिए, आई एम गिविंग यू 2 more minutes। उसके बाद आप मतलब जितना भी किया है ना आपने वो भेजिएगा हमको, ठीक है? तब 2 मिनट में आई थिंक कुछ कर लिया होगा आपने, थोड़ा बहुत तो। ठीक है, जितना किया होगा उतना भेजिएगा। आई अंडरस्टैंड कि मोलालिटी एंड यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट मोलालिटी, इट वुड टेक अ लॉन्गर टाइम, बट इन 2 minutes यू सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन, तब तक हम उतना चेक करेंगे। ठीक है, आराम से कीजिए, टेंशन मत लीजिए ज्यादा। ठीक है, यू कैन लुक योर नोट्स, यू कैन लुक एट द फॉर्मूला, यू कैन लुक एट सम प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर वी हैव डन सिमिलर प्रॉब्लम्स अगर हमने किया है तो उसको भी देख सकते हैं आप। You guys have 10 more seconds. Please send me the answers ना, जो भी आपने किया please send it to me. Send me whatever you have done. जल्दी भेजिएगा यार, आप लोग फिर बहुत इंतजार कराने लगते हैं। 2 मिनट का टाइम दिया था, उसके अंदर आपको भेज देना चाहिए ना। Mariam Batul, I have got yours. Zeba, I am waiting for you. तो स्वागत नहीं किया। Sorry, what? Mariam? I couldn't complete the question. नहीं नहीं, तो कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा ना, वो तुमको पता है। 20 ग्राम सोल्यूशन 100 ग्राम डेंसिटी दिया 1.202 मोलालिटी, गिवन मास। हाँ भाई, हड़बड़ा गया आप, थोड़ा ज्यादा हड़बड़ा गए। मोलालिटी का आपने फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं किया। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज ना, केजीज करेंगे तो 100 ग्राम से 100 ग्राम को केजी में करेंगे तो क्या होगा देखिए, है ना? ठीक है, जहां तक आपने मतलब इन्फॉर्मेशन को सही एक्सट्रैक्ट की है, एक्सट्रैक्टेड द इन्फॉर्मेशन करेक्टली। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू कैलकुलेटेड जेबा, क्या लिखा है आपने? मोलारिटी या मोलालिटी, क्या लिखा है? Molality? मोलालिटी लिखा है ना, ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, जी। ठीक है। जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी सी दी कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, बस आपने ये नहीं किया है। हाँ ठीक है, बाद में आपने उसको भी कर लिया, ठीक है। मोलल, दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना है, मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम विल बी इतना, ठीक है। मेरे 1.202 को पूरा 1 नहीं पॉइंट, हुआ। व्हाट जेबा? I couldn't complete this entire हाँ, question. I only did till here. कोई बात नहीं, हमने बोला था क्या कंप्लीट करने के लिए? हमें तो पता है, जितना हुआ भेज दीजिए, ठीक है, कोई बात Okay, sir. नहीं। देखा मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, है ना, बस हमको ये देखना था, तो आपने सही किया है। मरियम लुहानी, एम आई ऑडिबल?
मरियम लोहानी, एम आई ऑडिबल? माइक ऑन शायद आप नहीं कर पाएंगे आज। मरियम लोहानी, यू आर क्वाइट लेट टुडे, यू आर 1 hour लेट इन द क्लास। यस मरियम, मरियम लोहानी, टेल मी व्हाट हैपेंड। देखिए, तो मे बी योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट गुड, ठीक है ना? तो अच्छा, ठीक है मरियम, नॉट अ प्रॉब्लम, बट लाइक वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द क्लास। Switch networks. Okay, fine. ठीक है, see here guys. Uh, ask learning your team, Mariam Lohani. Ask the team to send you recordings. Okay, you will get the recordings, and from those recordings, you just watch this lecture. And if you have any doubts, then you can arrange for a doubt class. Fine, but you have to watch the lecture first. ठीक है? Make sure that your notes and everything is complete. Then it is easier to take the extra class. ठीक है? चलिए. So calculate them. So first of all, what is the information given? 20% मास बाई मास, तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं 20 ग्राम ऑफ के आई इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू हाउ मच? मास ऑफ 20 upon 166 molar mass. From here what we need, first of all they are asking us molality. So for molality, we need the mass of solvent in what? In kgs. Mass of solvent will be equal to, mass of solution is 100, mass of solute is 20, so this will be equal to 80. ठीक है ना? 80 grams of solvent will be there. Mariam, understood? Mariam Batul, 80 grams होगा, not 100, Yes, sir. है ना? 80 grams. So we need to convert this into kgs. So this will be equal to 80 upon 1000, and this will be in kg. So we can 8 by 100. Now we can calculate the molality. It will be equal to 20 upon 166 divided by 8 upon 100. Now denominator of denominator will be numerator. So denominator of denominator कौन है? 100 है. It is the denominator of the denominator. This is the denominator. उसका denominator कौन है? 100. So it will go. The numerator will become 20 into 100 divided by 166 will come down into 8. ठीक है? So this will be how much? 10 and this will be 4, है ना? और कर सकते हैं क्या? और करें? हाँ कर लेते हैं इसको, 2 and 5 कर लेते हैं. So we'll be having molality is equal to 500 divided by 166 का डबल कितना हो जाएगा? What will be the double of 166? छः का डबल, 12 का 2 हाथ में रहा, 1 13 का 3 हाथ में रहा, 1 232. ठीक है, एंड it will be approximately 1.5. है ना? Approximately 1.5. कॉपी कीजिए इसको. एक सेकंड, 332 होगा ना, नॉट 232, 332. डन एवरीवन? यस, जल्दी बताइए. एनीवन स्टिल राइटिंग?
एनीवन स्टिल राइटिंग? नो वन इज राइटिंग, ठीक है। कि मोलारिटी तो अभी हम लोग ने जस्ट किया, सेम सवाल था बिल्कुल, है ना। मास परसेंटेज इज गिवन, दे आर आस्किंग द मोलारिटी एंड डेंसिटी इज गिवन, तो मोलारिटी तो निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन के लिए बता देते हैं। तो फॉर मोल फ्रैक्शन व्हाट आई विल डू, 20 ग्राम ऑफ KI, अच्छा आई विल डायरेक्टली राइट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर नाउ, है ना, 80 ग्राम ऑफ वाटर। So from here I will get the number of moles of solute, that will be equal to 20 upon 166. And from here we will get the number of moles of solvent, which will be equal to 80 upon 80. So इसको simplify कर सकते हैं, 10 upon 83 हो जाएगा ये, 83 ना, हाँ 83, ठीक है। तो number of moles of solute आपके पास कितना आ चुका है, this is 10 upon 83, and number of moles of solvent it is equal to 5. Correct है ये सुनो प्लीज, 5 होगा, 18 5 सा नहीं, 18 5 सा तो 90 होता है, so this will be 40 upon 9 करना पड़ेगा फिर तो, ठीक है। आई डोंट थिंक देयर इज अनदर, हाँ 40 upon 9। अब बेसिकली आपके पास क्या बचा है, you have chi b that is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solvent plus solute. बस you will plug this values in, obviously this is going to be a bit tough calculation, but लेकिन कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे ना, yes or no, tell me guys, plug in the value of NB, plug in the value of Na and NB in the denominator and then calculate. मरियम बतूल, खदीजा, जेबा, मरियम लोहानी, कैलकुलेशन हो जाएगी, yes or no? जी ठीक है, वेरी गुड। देखिए एक लास्ट टॉपिक है में relationship between molality and molarity, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी हुई रहेंगी, गिवन क्या क्या रहेगा, गिवन रहेगा आपको मोलारिटी, ठीक है। ध्यान देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा, इफ आई से 2 मोलर, है ना, या फिर हमने ये कहा है कि मोलारिटी इज इक्वल टू 2, क्या मतलब है इसका, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, मेक सेंस, प्लीज टेल मी, सही है, हाँ या ना, जल्दी बताएं, मेक सेंस, yes or no guys? हेलो, Yes. एम आई ऑडिबल? ठीक है ना। अच्छा वही अगर हमने कहा इफ यू हैव सपोज x मोलर, तो क्या मतलब हो गया, x मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, ठीक है, x मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम बाइफर्केशन करते हैं, मोल्स का तो हो गया, लेट अस ट्राई टू थिंक अबाउट दिस 1 लीटर, ठीक है। 1 x मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, आई नीड टू ट्रांसलेट दिस 1 लीटर किसका, 1 लीटर ऑफ solution also ना, because we are talking in terms of molarity. I want to go from liter of solution to mass of solvent, ध्यान से देखिएगा, 1 लीटर का मतलब क्या हुआ, 1 liter of solution will be equal to 1000 ml of solute, and if density is equal to d grams per ml, density आपको क्या दी हुई है, d grams है ना, d is some number, then we can say mass of solution will be equal to, आपको पता है ना,